this 1 is 11 or not, right? If this 1 is not divisible by 11, the entire number is not divisible by 11. आप check करके देख सकते हो, right? This is a good thing. One more I'll take, which is divisible by 11. Suppose 1331. तो यहाँ पे odd place 2 है, 1 plus 3. If I add 1 plus 3, what will I get? 4. This even place digits, if I add, what I get? 4. Then what is the difference between these two? 4 minus 4 is 0. So the entire number is divisible by 11. Such a good idea. We have a good proof of this, right? I'll go for this. Whenever session will go ahead, right? आज मैंने उसको नहीं लिया है, but we'll go for that. Whenever we'll get into little bit of expansions, right? Okay. अब देखते हैं इसके ऊपर मजे का प्रॉब्लम है, which is already set, right? जैसे मैंने लिखा है, आम 2023 ये प्रॉब्लम आया, देखो कितना बढ़िया प्रॉब्लम है, हाउ गुड इट इज. सो आप लोग कर सकते हो सब लोग, बट आई विल एक्सप्लेन इट. गिवन दैट अ नंबर 1481010A095 is divisible by 11, where A is any digit. Any digit means 0, 1, 2, 3 up to 9. What are the possible values of A, right? So let us try. I have the number as 1481010A095. Okay. Now let me mark the odd places once. These are the odd place. These are the odd place digits. इनका sum निकाल लेते हैं. Let me find the sum of this. 1 plus 8 plus 0, then plus A plus 9. How much is the sum? 18 plus A. Very good. Then what is the sum of the even places? It is 4 plus 1 plus 1 plus 0 plus 5. This is 5, this is 5, 10, then this is 11. Achha. What is the condition? That this number should be divisible by 11. Achha. This is divisible by 11. Achha. And now let me take the differences, right? Let me take the differences of the bigger to minus, bigger to smaller. That will be good. 18 minus A, sorry, 18 plus A minus 11. Here, what I should get? I should get some numbers which is divisible by 11, so that the entire number becomes divisible by 11. अच्छा, तो पहले लेफ्ट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो. कितना मिलेगा? 18 minus 11 will make it 7 plus A. अब यहां पे अपना सीक्रेट कोड डालो. क्या क्या नंबर होने से डिविजिबल होगा? यस, दैट कैन बी 0. 0 होने से 11 से डिविजिबल होगा. 11 होने से भी डिविजिबल होगा. 22 होने से भी डिविजिबल होगा. 33 होने से भी डिविजिबल होगा. अच्छा, लेकिन हम बहुत बड़े नंबर्स तक नहीं जाएंगे. पहले देखते हैं यहां से क्या क्या वैल्यू निकलता है. इफ आई इक्वल 7 प्लस ए इक्वल टू 0, ए कितना निकलेगा? -7. क्या मैं ए एक्सेप्ट कर सकता हूं? कैन आई एक्सेप्ट दिस ए हियर? इज इट एक्सेप्टेबल? Is it acceptable? Answer is 3, maybe. Sayan, let me see. A equal to -7 acceptable नहीं है, क्योंकि ये डिजिट है. डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव. तो मेरा ये गया. नेक्स्ट क्या हो सकता है? 7 प्लस ए इक्वल टू 11. अच्छा, ए कितना निकलेगा? 4. बहुत बढ़िया है, ये तो मेरा काम का है. मतलब ए इज ओके, फाइन. इसके बाद 22 देख लेते हैं. ये देखने से ही पता चलता है कि ए का वैल्यू कितना होगा? 22 minus 7, दैट मीन्स 15. भाई 15 तो डिजिट नहीं है, सबसे बड़ा डिजिट तो 9 है. इसका मतलब क्या है? आगे जाके कोई फायदा नहीं. आगे जाके कोई फायदा नहीं है, राइट? और बाकी नेगेटिव नंबर्स तो आप ले ही नहीं सकते हो. -11 लेने से क्या आएगा? आंसर माइनस में आएगा. तो आपका क्या वैल्यू हुआ? पॉसिबल वैल्यू ए इक्वल टू 4. दैट मीन्स इफ ए इक्वल टू 4, योर नंबर इज डिविजिबल बाई 11. गुड. अभिजीत साहा ने आंसर दिया है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Anyway, Shreyas also tried. That's a good thing. And then somebody else, Avinav Saha. Yes.
Okay, thank you for participating. This is a good problem. Next. Yeah, I give you the scope to you this time. Please find it and let me know the answer. Yes, try karo and let me know the answer. Let me know the answer. And the number I'm reading it, huh? This time this number is x, not multiplication sign. 9848 This number is to be divisible by 11. क्या क्या वैल्यू हो सकता है x का? Please find it. Please find it. Take your time, no problem. It's an interesting problem. हम लोग धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, एकदम इजी इजी प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, राइट? Anyone got any answer? One. Sayan has answered one. Then let me wait. Again, anybody else will give anything? One answer. Sayan, Shreyas, they have given one. Let me see. Let me check. What about others? Are you all understanding? सब लोग समझ में आ रहा है सबको? If not, you're not understanding. अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे clearly chat box में बोल दो, कोई टेंशन नहीं है. I'll explain you Assamese also. No problem. অসমীয়া তো কই লম, হিন্দি তো কম, নো প্রবলেম, বুঝি পালে হল. বিতুপন कश्यप said one. Let me try, check it, right? ये मेरा काम है अभी, चेक करना चाहिए. Right, let me check this. क्या करेंगे? इवन प्लेस ऑड प्लेस को अलग अलग करते हैं. जैसे इवन प्लेस ऑड प्लेस में 947 है, यहां ही ऐड कर लेते हैं. 9 + 7 16 हो गया, 16 + 4 20 हो गया. फिर इवन प्लेसेस 8 + x, 8 + x. तो इस बार ये डिफरेंस मेरा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. अच्छा, अभिनव साहा नॉट अंडरस्टूड. अभिनव साहा কি বুঝি পোৱা নাই? অভিনৱ, তুমি তো আনসার দিছা. একেই কন্ডিশন, 11 এৰে ডিভিজিবল হ'ব নে নাই. ওকে, সো ইয়াতে 0 আহিব পাৰে, 11 আহিব পাৰে, and then 22 আহিব পাৰে. এবাৰ নেগেটিভ নম্বৰো আহিব পৰা চান্স থাকিব পাৰে. লেট আছ চেক ইট. তো এটোৰ পৰা কি পাম আমি? 20 - 8, that is 12 - x. আমি 0 ধৰিলে কিমান ওলাব, 11 ধৰিলে কিমান ওলাব, কেইটামান তিনটামান চেক কৰি লওঁ প্ৰথম. From here, if I consider 0, x I'll be getting as 12, cancelled. Next আমি ধরিম 12 - x = 11. তো x কিমান ওলাব আমার? x will be going that side, 1. Yes, that is a good number. I can accept it. 1 already কৈছে বিতুপন কাশ্যপ আৰু কোন সায়ন কৈছে আৰু চাও. Then I can consider 12 - x = 22. Then I'll be getting x = 10. Not good. This is not good. Right? This is not good. Negative number হব পারে নাকি? আমি -11 লব পাৰিম নেকি? তো -11 ললে তো আৰু ভয়ঙ্কৰে হব. এটা চেক কৰি চাও. It is very important, you have to check it, right? নাই. গতিকে আমার আনসারটো কি হল? 1. Very good. Sayan and Bitupan. Shreyas also very good, very good. Abhinav, is it clear? কোনটো ডাউট তোমাৰ আছে? মানে 11 এর ডিভিজিবিলিটি কেনেকে করা যায় চেক, এটুর ডাউট আছে নাকি? Okay, it is clear. Okay, thank you. So this was a question which was set in 2015 in Assam Academy of Maths Olympiad. I have chalked out the papers today. Oh, very good. This is a very good question of divisibility. इसमें आपको थोड़ा सा अपना याद यूज करना पड़ेगा. क्या आप लोग ट्राई कर सकते हैं? सयन सरकार, व्हाट्स द प्रॉपर्टी ऑफ 7 डिविजिबिलिटी? है 7 का है एक. 7 का मैं आज आपको नहीं दे रहा हूं. आई विल बी गिविंग इट, राइट? आज हम लोग नॉर्मल को पढ़ लेते हैं. वी हैव ए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 ऑल्सो. थोड़ा सा मॉडिफाइड है.
विल डू इट। ओके, ये ट्राई करो तो। कैन यू ट्राई दिस? कैन यू ट्राई दिस? इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, राइट? देन आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। क्या दिया है देखो, फाइंड थ्री पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, इट्स लेस देन 10। 10 से छोटा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मगर ये पॉजिटिव ही होना है। सो दैट द नंबर 3, A, 7, 8, B, 6 इज डिविजिबल बाई 44। 44, बस 44 से ये डिविजिबल होना चाहिए। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? कैन यू क्रैक द बेसिक आइडिया? Okay, Sayan already answered it as 0931 and 53. Very good. Let me check it. I don't know. Really, I don't know. I have to solve it in front of you. If you have done it, very nice, very nice. So here, what exactly we have to see is, इस बार हमें बताया गया कि 44 से डिविजिबल है या नहीं। तो 44 अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में जाते हैं तो इसमें 2 और 11 प्राइम फैक्टर्स आएंगे, बट सिर्फ 2 से डिविजिबल होने से नहीं होगा। 44 से डिविजिबल होने का मतलब है 11 से भी होना पड़ेगा, एंड देन नॉट ओनली 2 बट इट शुड बी डिविजिबल डिविजिबल बाई 4 एज वेल। तो यहां पे आपको दो डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है। तो पहला रूल 11 का कर लेते हैं। 11 का पहला नहीं, I think it is better if you apply 4 rules, right? That will be more better. It will be easy for you to segregate it. ठीक है? तो हम लोग कब बोल सकते हैं कि 3, A, 7, 8, B, 6 ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? अब क्विकली याद करो, 4 से नंबर डिविजिबल कब होता था? When a number was divisible by 4, when the last two digit form a number divisible by 4, last two digit। अच्छा, तो you got last digit as 6। अब ये है मेरा b का जगह। अब भैया b क्या क्या बैठाने से ये 4 से डिविजिबल होगा? पहले आप लिखो। 0 बैठा सकते हो क्या? 0, 6 आएगा? नहीं होगा, b का वैल्यू 0 नहीं होगा। बस 1 बैठाने से क्या होगा? b का 16 मिलेगा। यस, 1 इज अलाउड। 2 देने से 26, नॉट डिविजिबल बाई 4, नहीं काम आएगा। 3 देने से 36, इज 36 डिविजिबल बाई 4? यस, 36 इज डिविजिबल बाई 4। 3 दे सकता हूं मैं बी में, बाद में देखेंगे ए के साथ मिलेगा या नहीं। देन 4, 46 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, नहीं होगा। 56, yes, 56 is divisible by 4, right? Isn't it? Then 6, 6 are, sorry, I did a mistake here, I think. 6, 36, 56, oh, 66, no, 66 is not divisible. Then 76 is divisible by 4, तो 7 अलाउ करेंगे। देन फिर 8 अलाउ नहीं करेंगे, 9 अलाउ होगा, 96। तो अब ये तुम बोल नहीं सकते हो कि ये सारे पेयर करेक्ट होगा, इनमें से अभी ए के साथ मिलाना है। दीज आर ओनली पॉसिबल प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑफ बी। अब मैं दूसरा वाला यूज करता हूं। दूसरा वाला कौन सा है? द अदर वन इज अबाउट द डिविजिबिलिटी बाई 11। तो 11 में हमें ऑड एंड इवन प्लेस ढूंढना है। ओके, 3 + 7 + बी, 3 + 7 + बी, ये हो गया ऑड प्लेस का सम। कितना मिला टोटल? 10 + बी हो गया। बहुत बढ़िया। फिर इवन प्लेस का सम क्या क्या हुआ? A + 8 + 6, दैट इज 14 + A। अच्छा, ये ऑड प्लेस का, ये इवन प्लेस का, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 11 का मल्टीपल होने से होगा। तो ले लेते हैं, कोई भी डिफरेंस पहले ले लेते हैं ऐसे करके। ये कितना निकलेगा हमारा? 4 + A, ये +B है, तो यहां पे -B हुआ, राइट? तो अब मुझे देखना है कि यहां पे 0 बैठा के या 11 बैठा के
बी का क्या क्या वैल्यू और ए का क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। राइट, पहले देखते हैं जीरो बैठा के, एंड बी का एक एक वैल्यू पुट करना पड़ेगा। इट विल टेक लिटिल टाइम बट यू हैव टू डू इट। तो बी इक्वल टू वन बैठा देते हैं। वन बैठाने से इफ आई पुट बी इक्वल टू वन, व्हाट विल आई गेट? मैं बी इक्वल टू वन ले रहा हूं, ठीक है। देन व्हाट विल आई गेट हियर? आई विल बी गेटिंग दिस एज 4 - 1, 3 + a इक्वल टू 0। ए इक्वल टू नेगेटिव नहीं मिल रहा है, मतलब बी इक्वल टू वन में नहीं ले सकता। कब? जीरो के लिए। अच्छा, अगर 11 होगा तो? अगर मैं 11 लेता हूं तो 3 = 11, क्या निकलेगा तब? मैंने बी अभी भी वन पकड़ के रखा हूं। 11 लेने से ए का कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। यस, 8 तो मैं अलाउ करता हूं। तो एक पेयर हो गया मेरा 8, 8, ठीक है। अच्छा, बी को अभी भी मैं वन रखा हूं। फिर मैं 22 दे सकता हूं क्या? 22 देने से नहीं आएगा, तो ये 22 नहीं देंगे। अच्छा, बी इक्वल टू अभी 3 लेता हूं। आई टेक बी इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन। बी इक्वल टू 3 लेने से क्या आएगा? 4 - 3, 1, दैट इज 1 + a। क्या मैं जीरो दे सकता हूं? नहीं। क्या मैं इसमें 1 + a में 11 दे सकता हूं? नहीं दे सकता, क्योंकि ए 10 आएगा, बाकी तो 22 होगा ही नहीं। मतलब क्या मिला मुझे? बी इक्वल टू 3 में कुछ वैल्यूज नहीं मिला, तो बी का 3 का कोई काम नहीं है। लेट मी पुट 5। अच्छा, 5 करेंगे तो क्या मिलेगा? बी, ये हो जाएगा, मैं नीचे नहीं ऊपर लिख रहा हूं, अभी थोड़ा सा स्केटर्ड हो रहा है, नो प्रॉब्लम, यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ 5 बैठाने से a - 1 होगा, दैट मीन्स बी इक्वल टू 5 मैंने लिया। सो a - 1 इसको जीरो ले सकता हूं, राइट। तो बी 5 होने से ए का वैल्यू 1 आता है। आई कैन एक्सेप्ट दिस। मतलब व्हाट इज द अदर पेयर आई कैन राइट? 1, 5। अच्छा, दूसरा वाला लेते हैं। a - 1, क्या ये 11 हो सकता है? नहीं होगा, बाकी ऊपर वाला तो होगा ही नहीं। राइट। तो बी, यही एक पेयर मिला है। ठीक उसी तरह से ये चल गया। 7 ले लेते हैं। इफ आई पुट 7, व्हाट विल हैपन? 4 - a - 3 होगा। अच्छा, जीरो होने से बहुत बढ़िया भाई। p इक्वल टू 7 के साथ मुझे क्या मिला है? आई कैन गेट a इक्वल टू 3। तो 3 7 एक पेयर हो गया। अच्छा, इसमें 11 ले सकता हूं क्या? नहीं भाई, बड़ा हो जाएगा। तो 7 के साथ एक पेयर बन गया, ठीक है। लेट मी नाउ ट्राई टू थिंक अबाउट 9। इफ आई टेक b इक्वल टू 9, देन व्हाट विल आई गेट? 4 - 9, 4 - 9 -5, that is a - 5, a - 5, a - 5 will generate what? 0। तो फिर मुझे एक मिलेगा 5 एंड 9, ठीक है। फिर अगर मैं 11 ले लेता हूं तो a - 5 इक्वल टू 11 नहीं चलेगा, राइट। तो ये हो, am I clear to you? सो अब तुम मुझे ये भी पूछ सकते हो कि सर क्या मैं इन दोनों को उल्टा करके भी चेक करूं? क्या उसमें अलग मिल सकता है? मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने अगर 0 11 में टेस्ट किया, उल्टा करने से किस में टेस्ट होगा? 0 n - 11 में। आंसर सेम ही आएगा, राइट। सो यू हैव हाउ मेनी पेयर्स? 4 pairs of such numbers. Shreyas, can you explain? Yes, I can explain, no problem. Let me just check the answer of Sayan. 1 5 is okay, 3 7 is okay, 5 9, and then you missed this 8 1. 8 1 pair is missed, that you can get. Okay, for Shreyas, I am explaining you here. In this case, the number is to be divisible by 44. तो 44 से डायरेक्ट डिविजिबिलिटी का तो रूल नहीं है, वी हैव टू ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। एक 4 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, दूसरा 11 का करेंगे, राइट। तो 4 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या देखना था? लास्ट 2 डिजिट से फॉर्म होने वाला नंबर को किससे डिवाइड होना है? 4 से डिविजिबल होना है। तो आई ट्राई टू फाइंड हियर द लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट डिजिट तो मुझे 6 दिया ही है,
अब यहां पे आप टेस्ट करके बताओ कि व्हाट आर द डिजिट्स यू कैन पुट. Oh, yes. Find three pairs of values. Okay, no problem. We found all exhaustive ones. ठीक है, thank you. Thank you, Sayan. So we got 4. So now यहाँ पे आप डिजिट बैठाओ, पहले 0 बैठा दो. B0 बैठाने से क्या 064 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा. तो यू कैन नॉट टेक 0 फॉर B. 1 लेने से 16 आएगा. 16 इज डिविजिबल बाय 4. इसका मतलब b इक्वल टू 1 लेने से पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा. सो आई एक्सेप्टेड 1. ठीक उसी तरह से यू चेक कौन कौन सा डिजिट यहां बैठाने से एक नंबर मिलेगा विच इज डिविजिबल बाय 4. एम आई क्लियर सर? यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस इंग्लिश? I hope. Yes. So this way we have sorted out the value of b. But now I have to check also the divisibility by whom? By 11. For 11, I have to check the odd and even places differences. So these are odd places sum, that is coming out to be 10 plus b. And this is the sum of even places which is coming out to be 14 plus a. अच्छा, अब याद करो. When a number is divisible by 11, when इन दोनों का difference 11 से divisible होगा. तो मैंने डिफरेंस निकाला, इन दोनों का डिफरेंस निकाला. कितना आया? 4a माइनस b. अब ये अगर 11 से डिविजिबल होना पड़े तो इसका वैल्यू या तो 0 होगा, या तो 11 होगा, या फिर 22 होगा, ऐसा होगा. यू कैन चूज द माइनस ऑल्सो. माइनस विल ऑल्सो जनरेट दिस वैल्यूज ओनली. सो मैंने क्या किया, पहले 0 को सेट किया और यहां से एक b का वैल्यू उठा लिया 1 और यहां डाल दिया जैसे ये वाला. तो मुझे ये वाले इक्वेशन से ये मिल गया. अब मैं 0 के साथ बनाता हूं तो a इक्वल टू -3 आ गया. इसका मतलब b1 लेने से a का वैल्यू -3 आने से एक्सेप्ट नहीं होगा. ठीक है. अब इसका मतलब 0 रिजेक्ट हो गया, ये वाला 0 रिजेक्ट हो गया. बट 11 ले लेते हैं. वंस आई कंसिडर दिस एज 11, तो a का वैल्यू कितना मिला? व्हाट विल बी a वैल्यू? इट इज 8. मतलब b1 होने से a 8 ले सकते हो. तब the number will be divisible by 11 and it will be also divisible by 4. That means altogether the number is divisible by 44. Right? तो ऐसे करके हमको हर एक नंबर को सॉर्ट आउट करना है. Then we'll be getting the results. So we got 4 such pairs. We got 4 such pairs. I hope now it is clear. थोड़ा सा घर में इसको देखना. ये मैं नोट जैसे मैंने कचरा होने से भी मैं शेयर करूंगा. आप लोग इस प्रॉब्लम को फिर एक बार घर में करना. राइट? सो अभी 9 बजा है, अभी मैं छोड़ूंगा. बट बिफोर दैट लेट मी सी व्हाट प्रॉब्लम आई कैन गिव फॉर यू. मैं कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को दूंगा प्रैक्टिस के लिए. सर, यस सर. जस्ट একটা 4 ডিজিট নাম্বারটা লিখে দিওছুন. এনি 4 ডিজিট নাম্বার. এনি 4 ডিজিট নাম্বার 1977. আচ্ছা, এই লাস্ট ইউনিট ডিজিট অফ দুইটা মাল্টিপ্লাই করক. ইউনিট ডিজিট বাই 2. 14. জাস্ট 14. সো 197 এর পর 14 মাইনাস করক. 197. Oh, sir is telling the divisibility by 7. মাইনাস করে দিও. Yes. Again unit digit of divide করে দিও. Unit digit of 3 to the 6. 2 রে 3 to the 6. 2 রে করে দিও. 6 18 এর পর বিয়োগ করে দিও 6. 18 minus 6 12. Is the number divisible by 7? No, it is not divisible by 7. No. So 1977 is not divisible by 7. So this is the divisibility rule for 7. Yes, Sayan was asking. I think Sayan was... in case of 13, you have to simply add. Multiply the last digit by 2. Yes. Add it with the remaining digit and then continue this process. That way you can check whether the number is divisible by 7 or 13. 13 এর কারণে যোগ করব লিখব, add করব লিখব, আর 7 এর কারণে মাইনাস. Yes. 13 divisibility আছে. 13 হলো আছে. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার. Okay, dear students, thank you. বুঝি পাইছেন না?
ল'ৰাজনে বুজি পাইছে নে? মই সুধো এতিয়া। সুধিছিল। Sayan, I think Sayan was asking that. I forgot. Divisibility by 7. Kenake korise? How it is done? I am telling you. Whenever you are checking the divisibility by 7, you have to take the units place digit, multiply it by 2, and this number, whatever you are getting, you minus from the remaining part. Then you are getting this number. Do the same repetition for the next number you are getting. So till you get a final number which is divisible by 7. If it is divisible by 7, the number is divisible by 7. And if it is not divisible by 7, the number is not divisible by 7. And the same thing applied for plus. If you go on adding, it will be workable for 13. Divisibility rule of 13. Okay. So thank you so much. I'm going to share the slides with some problems intact with this. So you will try to solve them. We'll discuss it on the WhatsApp group also or in the next class. I'll tell you when the next class will be held. And thank you everyone. Thank you everyone for joining. Yeah. Bye-bye.